नहीं। हरे कृष्णा सचिन। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिवा आ रहा है? शिवा पता नहीं प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So we were doing inheritance and we were discussing about abstract class. So we discussed that how do you declare a class abstract by using the keyword abstract. Class, then abstract. You have to use this keyword abstract and then class name ABC, and then inside you have the members of the class. Okay, so what is the use of this keyword abstract? अगर तुम किसी क्लास को abstract declare करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? What happens when you declare any class as abstract? So this is just a revision of the previous class. इतना याद करके बताओ. अगर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? What happens? Yes, Laukush, say something. Hare Krishna, can you hear me? Yes. Yes, Priji. A small program was going on in our house. That's why Priji was just outside. Yes, we're back now, Prabhuji. I am asking that if you declare any class as abstract, so what happens by that? सचिन, तुम भी अटेंड कर रहे हो क्लासेस, तुमको बताना चाहिए. So if you declare any class abstract, so you cannot create object of this class. ठीक है, अगर तुमने इसको abstract बना दिया तो तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो इनिशियलाइज नहीं कर सकते. For example, if the class has these variables int x comma y, so ये variables को क्या बोलते हैं हम लोग? What these variables are called? Instance variables. ठीक है.
and then the class has this member method मान लो void display display. ठीक है, this method will print these values of x and y. This method will do that. I am not writing it, I'm just telling. So this method will print these values x and y. Then you create a main function, public static void main. Public static void main, then string args, okay. Then inside, suppose you have to call this display function. So what you have to do to call this function display? क्या करना होगा इसको कॉल करने के लिए? Yes, Sachin, you should speak now. ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना होगा? हाउ कैन यू कॉल दिस फंक्शन? Display type of display. हाँ, yes. What are you saying, Laukush? मेथड को डिफाइन करेंगे ना प्रोजी पहले फिर से. हाँ, मेथड मैंने मान लो डिफाइन कर दिया. मेथड के अंदर क्या है, हमने प्रिंट किया x और y की वैल्यू, ठीक है. तो अब मुझे ये मेथड को कॉल करना है. तो हाउ कैन आई कॉल दिस मेथड? मेन फंक्शन के अंदर मुझे इसको कॉल करना है. जनरली तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. हाँ, you have to create object. If you want to call this method in a static main function, you have to create object. So how you create object? You create like this: abc ob is equal to new abc, and then you write like this: ob dot display. Display bracket. Okay, so in this way you call this method. But we have declared this class abc as abstract. Abstract. हाँ वही. So you cannot create the object. It will show error. As soon as you create the object, it will show error. Error. Okay. So therefore you cannot call this function. This you cannot create the object of this class ABC. Right? You understand what is the meaning of abstract? Yes, please. If you write abstract before the class. So then what is the method? What is the way? How can we call this function OBC? Sorry, Prabhuji. So then how can we call this method display? Okay. So when you create this, when you create a class abstract, generally it is created for the super class. Okay. So then we need to create the subclass of ABC. We will create a subclass of ABC. So how you create subclass of ABC? Class sub ABC, okay, extends ABC, right? And then inside this you can create the main function. I am writing in short. I am not writing the full thing. Main. I am just writing main. But you should know that it is written public static void main string args. So inside main, now I can create the object of sub ABC. You cannot create the object of ABC, but you can create the object of sub ABC, because sub ABC is not an abstract class. Okay. So we can write like this: sub ABC OB equal to new new sub ABC.
Okay, like this. So now you can use this object ob and you can call ob.display. You can call ob.display. So question is, how can you call ob.display? ob.display is in abc class and we are using it in sub abc. So how we are able to use this display of abc class in sub abc? What is the reason? तो जी ये कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास पे आ जाता है। कंस्ट्रक्टर तो है नहीं यहाँ पे कहीं. We have not created any constructor. So how we are able to access this method display in it in sub abc? हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है बताओ. ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है? ये सेकंड क्लास का चाइल्ड क्लास। सब एबीसी. ओके, सब एबीसी के अंदर क्या डिस्प्ले मेथड है? डिस्प्ले मेथड किस क्लास के अंदर बनाया है? डिस्प्ले मेथड वी हैव क्रिएटेड इन एबीसी क्लास. फर्स्ट क्लास सुपर क्लास। हाँ, सुपर क्लास. So we are using the object of subclass sub abc to call the method of a super class. How it is possible? ऐसा कैसे संभव हो गया? ओवरराइडिंग। ये तो abc दूसरी क्लास है और सब abc दूसरी क्लास है. हमने सब abc के ऑब्जेक्ट से abc का मेथड कॉल कर दिया. ऐसा कैसे हो गया? ये मेरा क्वेश्चन है. तो जी ओवरराइड हो गया। ओवरराइड तो तब होता है जब तुमने दोनों क्लास में डिस्प्ले मेथड बनाया हो. दोनों क्लास में तो डिस्प्ले मेथड नहीं बनाया, एक ही क्लास में डिस्प्ले मेथड बनाया गया है, एक बार ही बनाया है, तो ओवरराइड तो हुआ नहीं है. तो यहाँ पे मेथड रीडिफाइन हो रहा है। रीडिफाइन नहीं हो रहा है, डिफाइन एक बार ही हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे केवल कॉल हो रहा है. ऐसा तो नॉर्मली करते हो ना, एक बार डिफाइन करते हो फिर उसको कॉल करते हो, राइट? सो डिफाइन तो एक बार ही हुआ है, यहाँ पे केवल हमने कॉल किया है मेथड को. बट क्वेश्चन ये है कि हमने जो ऑब्जेक्ट, हाँ, एबीसी क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसलिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं प्रभु जी। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर कैसे सब एबीसी से के ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल हो गया? सब एबीसी और एबीसी में रिलेशन क्या है? उसमें मेन लिख दिया तो वो एक्सटेंड चाइल्ड क्लास है। कर दिया वाली चाइल्ड क्लास क्लास और है ना, मेन. तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से. चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास. पैरेंट क्लास। So therefore there is no hindrance. सब एबीसी के ऑब्जेक्ट से हम इसके पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. समझ गए? हाँ अगर ये यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं होता, इफ देयर वाज नो कीवर्ड कॉल्ड एक्सटेंड, तब क्या ऐसा कर पाते? नहीं, तब नहीं पॉसिबल. Then you it will couldn't show access error. the yes Because it is totally different classes. But when it becomes a child class, then it can access the member of the super class. Is that clear? yes Prabhu. Yes. So now we will see one example. It's there in your semester 2 specimen paper. So I will show you that paper first. This is a question of inheritance. Yes.
So you should try to solve this paper. We have covered all the topics where recursion, strings you already know, and this is inheritance. So ये question तुम specimen paper solve करना शुरू कर दो. So we will come to this question today. So anyone of you, can you read it? Love kush कोई Yes, एक we बार हाँ पढ़ो. A superclass go down has been तो defined. सुपर क्लास to का क्या store नाम the- है? सुपर क्लास का क्या नाम है? Go down, down. Go down. Go down. हाँ ठीक है. Go down has been defined to store the details of the stock of a retail store. What is a retail Define- store? तो जी But- वही राशन पानी. हाँ परचून की दुकान, समझ गए? हाँ. एक- Define a subclass update हम्म, to store the details of the items purchased with the new rate and update the stock. yes. Some of the members of both the classes are given below. So these members are given. Class name is given to you. ठीक है? Class name is go down. ये किसकी बात हो रही है? सुपर क्लास या सब क्लास? Super class. Super ये तो class. सब क्लास है ना? Sorry, super class. हाँ. सुपर Fine. क्लास is go down. ठीक है? Go down. And how many instance variables are there in super class? 4. 4. ठीक है? ये तुमको ये instance variable दिए हैं. इनका ये नाम दिया है. इनका purpose दिया हुआ. Item is used to store what? Name of the item. Name of the item. So item का data type क्या होगा? Name होगा तो string. String. Item का data type हाँ. होगा string. String. Then QTY means to store the quantity of that item. मतलब वो जो item है, मान लो पेन है, तो कितने पेन Into. है, ठीक है? So हाँ ये तो int ही होगा. QTY का data type क्या होगा? Int होगा. हरे कृष्णा. INT. ठीक है? Then Yes. rate का data type. Rate means Int. unit price Rate of of each float pen. होगा bro. हाँ? Float. डबल Float या double. Generally we keep double. Double. Okay. Double या float. Right, so double. Then AMT, to store the net value of the item in stock. So AMT क्या हो गया? ये भी double होगा. डबल होगा. AMT को कैसे कैलकुलेट कर Average सकते हो? Total AMT को, amount वो rate और उसको quantity को जोड़ देते. हाँ, रेट और क्वांटिटी को क्या करोगे? हाउ विल यू Average. कैलकुलेट द टोटल नेट वैल्यू ऑफ? तुम्हारे पास 10 पेन है और हर पेन का हाँ तो दाम multiply 5 करेंगे. रुपए. हाँ मल्टीप्लाई करोगे ना. रेट इंटू क्वांटिटी, तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा कितने के पेन तुमने खरीदे. समझ गए? हाँ हाँ. सो नाउ दिस वाज द फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई द डाटा टाइप. यहाँ पे तुमको जो भी मेंबर दिए रहेंगे, तुमको ये क्लास बनानी है तो तुमको पता होना चाहिए इसका डाटा टाइप क्या लिखना है. क्लियर है? नाउ सेकेंड थिंग इज आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज वेरिएबल्स आर इनपुट वेरिएबल्स. इसमें से कौन से वेरिएबल्स हैं जो तुमको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा? इसमें से कौन से वेरिएबल्स इनपुट लेने होंगे? प्रभु जी आइटम क्वांटिटी. आइटम क्वांटिटी और प्रभु जी रेट तो मतलब पहले से डिफाइन भी हो सकता है ना प्रभु जी? नहीं, रेट भी पहले से डिफाइन हो, वो एक ही बात हो गई ना. यूजर से इनपुट लो या पहले से डिफाइन. रेट मतलब ये बताया जाएगा ना तुमको रेट, तभी तो. सो आइटम क्वांटिटी एंड रेट यू नीड फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, ये तुमको पता नहीं. अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट. जब तुमको रेट और क्वांटिटी पता है तो आइटम यू कैन कैलकुलेट. क्लियर? सो दिस इज अबाउट go down, right? Now you see here is member methods. So what are the member methods? What is this member method go down? ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है प्रभु जी, पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर. हाँ. वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए. हाँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. सो इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? What will be the parameters of this constructor?
ये प्रभु जी चारों डेटा मेंबर दिए हुए हैं प्रभु जी, ऊपर इंस्टेंस चारों उन्हीं को। हाँ ओके, शिवा तुम बोलो हाँ वो पहले। 4 होंगे। हाँ प्रभु ये जो चारों वेरिएबल दिए हुए हैं ऊपर प्रभु जी, ये सब होंगे। नहीं, चारों वेरिएबल की जरूरत नहीं है। हाँ तो प्रभु हाँ, जी ऊपर के तीनों वो हो जाएंगे प्रभु जी, अमाउंट तो कैलकुलेट अपने आप करेंगे। हाँ, ऊपर के 3 स्ट्रिंग आइटम, INT QTY एंड डबल रेट, ठीक है। अमाउंट वी विल कैलकुलेट to assign value to data members. Void display to display the stock details. Stock details में क्या क्या display करना होगा तुमको? What you have to display in यही this? प्रभु जी आइटम और क्वांटिटी Item, quantity and और उसका नेट अमाउंट। rate and net amount. ठीक, all 4 things you have नेट to अमाउंट वही रेट। display. ठीक है, okay, so this is done, super class is done. Now we will see the super class method. Can you see this program? Yes प्रभु जी। So you can see I have declared this class public class go down, string item INT QTY double rate double AMT. Then the constructor is there, no need to declare public, it's okay if you write only go down. Okay, go down, then these are the parameters: string item INT QTY double rate. Now this item and the instance member item are same or different? Item written as parameter and item written as instance. Different प्रभु जी। Different. So what is this item called? Which type of variable? Instance no local variable. yes local। This is local variable. Why it is called a local variable? Why this Only item? एक ही ब्लॉक में। Huh? Yes, why it is called? Function in that block only। Yeah, Limited। it will, which block? Which block? जिस ब्लॉक में डिफाइन हुआ है। कौन से ब्लॉक में डिफाइन हुआ है तो पूछ रहा हूँ। अरे गो डाउन उसमें कंस्ट्रक्टर में हुआ है ना प्रभु हाँ, जी। गो डाउन कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, so this is a local variable and this is a instance variable. So what is the purpose of this keyword? ये जो हमने किया है यहाँ पे this dot item equal to item, इसका क्या मतलब हुआ? लोकल वैल्यू वेरिएबल को रेफर करने के लिए। This dot item किसको रेफर करता है? क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। Instance variable. This dot item means instance variable. This one. This is called this dot item. और ये जो item है ये कौन सा वाला है? लोकल ये local वाला। ठीक है, clear है? yes please। So now you know how to initialize the variables by using parameterized constructor. Parameterized constructor की मदद से हम instance variable को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया? क्लियर है? शुड वी गो अहेड? yes please। Okay, so now we come to this display method. Okay, the next method was display. So here we have simply printed the values, system.out println item, then quantity QTY, rate, then amount, we have QTY into rate. Clear? Now yes। we come to the question again. So this go down method तुमको वहां पे नहीं लिखना है, ठीक है? You only have to write the subclass. So what is the subclass? Now you read. What is this? What is the name of subclass? Subclass is Update. Update yes। is subclass. So how many members are there? Instance variables? 2. So one is for what? For what purposes? To store the purchase quantity
क्वांटिटी store और the रेट unit price of to store the purchase quantity and to store the unit unit price. price of the purchase item. ठीक है, ये हो गया इसके दो। तो ये PUR QTY का डाटा टाइप क्या होगा? वही int 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 and PUR rate double double. not a double. double. Now this is, we come to the member methods. So member methods update. What is this update? कंस्ट्रक्टर है ब्रो जी, पैरामीटर Constructor कंस्ट्रक्टर है। initialize करने वाला। Parameterized constructor to assign values to data members of both the classes. दोनों क्लासेस के डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब तुम ये बताओ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? वही शिवा होंगे पहले ब्रो तुम जी, बताओ। गो डाउन क्लास के थे ना ब्रो जी, वही वाले। हाँ, कौन कौन से थे बताओ। हाँ, आइटम मतलब इसमें आइटम क्वांटिटी और रेट। हाँ, स्ट्रिंग आइटम, फिर INT Item quantity rate amount. क्वांटिटी और Double डबल rate. रेट। फिर और कौन से होंगे इसमें? Amount. तीन ही तो थे ना ब्रो जी। हाँ, उसके तो 3 थे। हाँ, इसमें एक वो ये और बढ़ जाएगा, परचेज। क्या ये परचेज क्वांटिटी और परचेज रेट? हाँ, परचेज क्वांटिटी एंड परचेज रेट। तो टोटल Rate. इसके कितने पैरामीटर्स हो गए? टोटल 5. 5 पैरामीटर्स। 5. So update constructor will have 5 parameters. Why? 3 of the super class and 2 of दो अपने subclass. Clear? So you can now declare update, define update constructor. तुमको यही क्लास बनानी है एग्जाम में, गोडाउन की नहीं बनानी, वो केवल समझने के लिए है। ठीक है, क्लास कौन सी बनानी है? यही वाली अपडेट। ठीक है, so this is done. Now you carefully read this next method, void update. तो इसमें क्या करना है? ये मेथड है एक void update. Now what you have to do in this method? You read and explain to me. Yes, Laukush. to update the stock by adding the previous quantity by the purchased quantity and replace the rate of the item if there is a difference in the purchase rate. Also update the current stock value as quantity into unit price. So now you explain. पूर्णांश क्या हो गया? सिंबल समझ में नहीं आया मुझे। नहीं कुछ नहीं। हाँ, क्या हो गया? क्या नहीं, कुछ नहीं। मेरे को क्या मतलब, आप मेरे से पूछो। हाँ हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारे उस पे सिंबल कुछ आ रहा था ना? अच्छा, वो सिंबल, वो तो जी ऐसे ही, वो नहीं। ओके, वो तो ये पढ़ा। ठीक है, अब तुम बताओ इसमें void update में क्या करना है हमको? पुराने को मतलब नए को जोड़ना होगा, नए जो होगा, है ना? हाँ, किसको पुराने जोड़ना स्टॉक होगा? में। पढ़ के बताओ। हाँ, क्या क्या To update जोड़ना the है? stock by adding the previous quantity by the purchased quantity. हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? पुरानी क्वांटिटी को purchased quantity, वो हाँ क्या अपडेट करना होगा स्टॉक पुरानी क्वांटिटी को purchased quantity में जोड़ के। हाँ, ठीक है, And अब replace आगे the क्या? rate of the item if there is a difference, और आइटम के जो रेट है उसमें जो डिफरेंस होगा उसको नहीं करना नहीं, होगा। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। नहीं, रिप्लेस करना होगा, सॉरी, पुराने परचेस रेट को अगर कोई डिफरेंस है तो उससे रिप्लेस करना होगा। हाँ, अगर कि पुराने परचेज रेट और नए परचेज रेट में डिफरेंस आ गया तो पुराने को उसको रिप्लेस update करके हम करेंगे। उसको नए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ अपडेट का पर्पस समझ में आ गया क्या करना है? हाँ हाँ। नाउ void डिस्प्ले, ये देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये यहाँ पे भी void डिस्प्ले, यहाँ पे भी void डिस्प्ले। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? दोनों क्लासेस में मतलब प्रो जो जो हमें प्रो जो पुरानी, अब मतलब जो पुरानी जो स्टॉक वो थी ना, डिटेल्स है कितने क्वांटिटी है आइटम और रेट और नया दोनों प्रिंट करना है ब्रो जी। हाँ, ये दोनों अभी करना वाला है। void display updated results को दिखाएगा। सो माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और यहाँ पे भी डिस्प्ले नाम, सेम पैरामीटर, कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है?
इनहेरिटेंस। नहीं, Inheritance bro जी। इनहेरिटेंस तो हो ही रही है, क्लास प्रोग्राम ही इनहेरिटेंस का है यहाँ पे। प्रभु जी, हाँ, अब प्रभु जी ये दोनों अलग अलग क्लास में है, तो मतलब इसे ओवरलोडिंग बोल सकते हैं प्रभु जी? ओवरलोडिंग तो दूसरा कंसेप्ट, उसमें पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग, मेथड वाह वाह। ओवरराइडिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। सो हाउ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू मेथड्स? ये सुपर क्लास के मेथड और ये सब क्लास के मेथड में डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे? दोनों का नाम सेम है, सो हाउ विल यू डिस्क्रिमिनेट? हाँ प्रभु जी, आपने उस दिन बताया था कि मतलब जो सुपर क्लास का फंक्शन है उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, उसे कॉल करने के लिए तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो कैसे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो कैसे डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे? क्या तरीका है? एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर देंगे प्रभु जी। नहीं, नहीं। पेरेंट चाइल्ड Can you क्लास please वाला तो version? check है। You have to use a particular keyword. What is that keyword? This. हाँ बताओ। एक्सटेंड। नहीं, एक्सटेंड तो इनहेरिटेंस क्लास This बनाने। bro जी, this. नो, अरे नहीं नहीं। इतनी जल्दी भूल जाओगे तुम लोग। हाँ प्रभु जी, हाँ, आपने बताया था प्रभु जी सुपर क्लास के फंक्शन के लिए सुपर यूज होता है। हाँ। सो इफ यू राइट हाँ। सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर डॉट डिस्प्ले का मतलब कौन सा मेथड होगा? सुपर क्लास का कि सब क्लास का? सुपर क्लास का। सुपर क्लास का। ठीक है, समझ गए? Yes bro। हाँ, तो नाउ यू रीड बिलो, क्या क्या लिखा है, क्या तुमको इसमें करना है? देखो, पढ़ो जरा लव कुश। Assume that the superclass godown has been defined. Using the concept of inheritance, specify the class update, giving details of the constructor, void update, and void display. देन आगे पढ़ो। The superclass main function and algorithm need not be written. हाँ, तो सुपर क्लास मेन फंक्शन एंड एल्गोरिथम नीड नॉट बी रिटन। तो व्हाट यू हैव टू राइट, क्या लिखना है? अपडेट क्लास लिखना है बस प्रभु जी। अपडेट क्लास लिखना है। अगर ये गो डाउन की डिटेल्स नहीं दी होती तो क्या अपडेट क्लास लिख सकते थे? नहीं। नहीं लिख, यू नीड द डिटेल्स ऑफ गो डाउन, सो यू हैव Go टू down, अज्यूम down, down. दैट दिस गो डाउन इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। तो समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? जी प्रभु जी, आप हाँ, अब देखो, विल प्रभु कम टू जी, द अपडेट क्लास। प्रभु जी एक चीज पूछनी है प्रभु जी। हाँ, हाँ, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि मतलब सुपर क्लास और सब क्लास के फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है, तो सुपर क्लास वाले में हम सुपर यूज करेंगे। पर प्रभु जी अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अगर कॉल करते हैं तो फिर तो सब क्लास वाली फंक्शन ही तो कॉल होगा बस। हाँ, यस। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हो, ओबी डॉट डिस्प्ले लिखते हो, तो सब क्लास वाला कॉल होगा। तो प्रभु जी ऐसे ही पता चल जाएगा ना ये सब क्लास का है। नहीं, तो अगर तुमको सुपर क्लास का कॉल करना है तो कैसे करोगे? हाँ वो तो प्रभु जी फिर सुपर लिख के और फिर मतलब उसके नीचे बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर देंगे। हाँ, यस। सो नाउ वी विल सी द प्रोग्राम, so it will be clear to you. Can you see the program? Is it visible? यस प्रभु जी। Yes. Yes, Prabhu ji. So now you can see I have created this subclass, public class update extends go down. Then सब चीज तुम्हारे प्रोग्राम में क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे क्वेश्चन में दी हुई है मैंने वैसे लिखा है। INT PUR QTY डबल PUR रेट, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टर पब्लिक अपडेट, यहाँ पे भी पब्लिक की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर के लिए सिंपल कंस्ट्रक्टर का नाम लिख सकते हैं। अपडेट स्ट्रिंग आइटम INT QTY डबल रेट, ये सब क्या हो गए? सुपर क्लास के हो गए।
int pur qty डबल रेट, ठीक है। अब इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब क्लास पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ये सब आप सबको बताया था मैंने रूल। कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब क्लास में पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है? सुपर और फिर जो तीनों मतलब जो वो पैरामीटर है वो, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब जो सुपर क्लास को मतलब एक उसको कॉल करना है, ऐसा कुछ। किसको कॉल करना है? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ब्रदर जी। हाँ, सो पहला स्टेटमेंट है सब क्लास इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास, फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास। Now how you call the constructor of super class? By using this keyword super. Super item qty rate, ठीक है। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में यही तीन चीजें थी, तो हमने ये तीन चीजें इसमें डाल दी, आइटम qty rate। Then next step is to initialize the instance variables of the subclass। ये सब क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं we have to initialize। So how we initialize? This dot pur qty equal to pur qty, this dot purchase rate equal to purchase rate। Clear? ये कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया? Any doubts? पूर्णांश? ठीक है। ये दिस वाला क्या है प्रभु जी, पर दिस वाला और बता दो जरा। हाँ देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स के सेम नाम है, pur qty, और यहाँ पे भी सेम है pur qty, ठीक है। तो ये pur qty क्या है? ये जो तुमको यूजर भर के देगा इनपुट वैल्यू देगा, ठीक है। तो वो इनपुट वैल्यू तुमको कहाँ डालनी है? यहाँ पे डालनी है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे? ठीक है, तो हमने क्या लिखा? दिस डॉट pur qty। नाउ दूसरा तरीका क्या हो सकता था? मैं यहाँ पे इसका नाम बदल देता, pur qty की जगह खाली p कर देता, ठीक है। तो मुझे ये दिस लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल pur qty इक्वल टू p ऐसे लिखा जा सकता था, पर जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा बिकॉज दिस इज द बेटर वे टू राइट। ओके, this is the better way to write, so there will be, you clearly know what is purchase quantity। नाम पढ़ने से तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ। ओके, so now we have initialized both the members, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया यहाँ पे। ओके, then next step is to declare define update function, void update। so void update में पहले क्या है? क्वांटिटी ऐड करनी थी। so क्वांटिटी ऐड करने के लिए तुमने क्या बताया था? जो पहले की क्वांटिटी है यानी qty प्लस न्यू परचेज क्वांटिटी। क्लियर? फिर रेट में क्या करना था? इफ देयर इज डिफरेंस इन रेट तब हमको रिप्लेस कर देना है। If there is difference in rate, then you replace। so it means if rate is not equal to purchase rate, then rate is equal to purchase rate। clear hai? and the last thing is to calculate the amount। so amount का तो simple है, जो current rate है rate into quantity। अगर तुमने replace कर दिया है तो भी इसी से multiply करना है, नहीं replace किया तो भी rate से multiply, rate into quantity। okay, now this is done, then we come to the display method। now you carefully see display method। सबसे पहले हमने लिखा system dot out println stock details before update। before update के लिए हमने क्या किया? super dot display, super dot display को मतलब किसके? सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर दिया, super dot display। update आफ्टर मीन्स स्टॉक डिटेल्स आफ्टर अपडेट। तो आफ्टर अपडेट करने के लिए क्या करना है? तुमको पहले अपडेट फंक्शन को कॉल करना है। वंस यू कॉल दिस अपडेट फंक्शन, द डिटेल्स विल बी अपडेटेड, डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। फिर से तुम सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दो, यानी कि सुपर क्लास के डिस्प्ले मेथड को। अब क्या होगा? अपडेटेड डिटेल्स प्रिंट होंगे, ठीक है।
So then this is the main function. पब्लिक स्टैटिक void main, यहाँ पे हमने अपडेट का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर वैल्यूज डाल दी और ob डॉट डिस्प्ले. So I will show you the, हाँ तो इसमें जो हमने void डिस्प्ले में अपडेट को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। void डिस्प्ले में अपडेट को, हाँ void डिस्प्ले में अपडेट को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। यस ये आखिरी वाले में पेन अच्छा, मतलब खाली मेन फंक्शन में कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हाँ, ये क्योंकि स्टैटिक है ना, स्टैटिक में तुम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। मुझे लास्ट में पेन का क्या है? पेन 8 पेन इज अ ऑब्जेक्ट ना, पेन को आइटम का नाम पेन है, स्ट्रिंग तुमने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर में। हाँ हाँ तो ये वैल्यूज फिर ob डॉट डिस्प्ले करोगे तो ये आ जाएगा। वैसे टाइम खत्म हो गया है, आई विल ट्राई टू शो, so you can see this is the output।